वही मुझे इसमें Please everyone keep your phones on the silent and no talking during the workshop. We are about to start. Our resource person, as you can see, is already here. So please settle down quickly. The Brand Wagon Club of the Department of Journalism and Mass Communication, Maharaja Agrasen Institute of Management Studies. Today, we all have gathered here to learn about journalism and its relation to data, technology, privacy and artificial intelligence. This occasion reminds me of a wise quote by Hein Weiwei: the ability to take data, to be able to understand it, to process it, Well, data journalism is a rapidly evolving field which combines the traditional principles of journalism with the power of data analysis. With the increasing amount of data available, journalists who possess data literacy and analytical skills are better positioned to uncover trends and patterns that lead to analyzing and visualizing data to create compelling stories. Our expert trainer will guide you through a range of topics including data sourcing, cleaning, validation, analysis and data visualization. Whether you are an expert journalist looking to upskill or a student just starting out in the field, this workshop will equip you with the tools and techniques necessary. You will learn how to use data to uncover stories, and that matter in how the workshop you will learn how to use data your audience effectively. Thank you. Today's workshop is corporate communications and event management. We would like to take a moment to appreciate the convener of the Brand Wagon Club, Professor Dr. Nidhi Chaudhary, and faculty coordinators Ms. Neha Bhagat, Ms. Neelam Nanda and Ms. Shefali Ahuja. This club was formed in order to expose students to a wide range of opportunities and to help media students build an impressive portfolio. The members of the Brand Wagon Club strive to work in the interests of the people from the media and communication industry. The club has successfully organized multiple editions of La Publicité, Madhyam, Anubhav, Jan Sanchar and many other events to name a few. Vinita Gupta, Head of Department of Journalism and Mass Communication, MAPES. She carries a rich experience of more than 35 years. She is a former member of Film Censor Board. She has also worked for electronic and print media for 20 years in various capacities for different media organizations. To mention a few are Sunday Mail, ATN News, ANI TV, BBC Hindi TV, Sign India International and Panchjanya. Dr. Gupta has also worked in capacity of producer, director, scriptwriter, news editor and special correspondent. She has traveled across the length and breadth of the country. She has conducted an international research project as a co-principal investigator. We may request Dr. Ma'am to come on the stage and give her remarks on the event. Good morning, everyone. I am here to welcome the resource person of today's workshop, Professor Dr. Umesh Arya ji. और जोरदार तालियों से पहले तो आप सब बहुत भाग्यशाली हैं कि ऐसी वर्कशॉप के आप पार्ट बनने वाले हैं जो इन फ्यूचर आपके बहुत काम आने वाले हैं। आप जितने भी प्राइम टाइम शोज 9 बजे से 10 बजे तक टेलीविज़न पर देखते हैं, आप मानकर चलिए उनमें से 80% डेटा जर्नलिज्म है। दैट इज 80% डेटा जर्नलिज्म, बीट सुशांत सिन्हा ऑन टाइम्स नाउ नवभारत और सुधीर चौधरी ऑन आज तक, उससे पहले वो DNA अपना प्रोग्राम पेश करते थे। आप डेटा जर्नलिज्म क्या है और कितना कॉम्प्लिकेटेड है। जब कुछ नहीं है तो हमारे पास डेटा है। कहते हैं ना, जब कुछ नहीं था तो कुछ था, कुछ शून्य था और हम उसी शून्य में से कुछ निकालने की कोशिश करते हैं। डेटा जर्नलिज्म इज दैट। जब हमारे पास कोई स्टोरी नहीं है
व्हेन वी डोंट हैव एनी स्टोरी, कोई ब्लास्ट नहीं हुआ, कोई दंगा नहीं हुआ, कोई प्रदर्शन नहीं हुआ, तो क्या करेंगे? वो 1 आवर खाली तो नहीं जाएगा. Their works are data journalism. So I welcome you, sir. Thank you. And I'm very happy that you have graced this occasion. और आपका जो नॉलेज है आज हमारे बच्चों के लिए बहुत बहुत काम आने वाली है, और इनफैक्ट हमारे लिए भी, हम सब के लिए भी. भले ही जर्नलिज्म में हमारे फैकल्टी मेंबर्स अभी नहीं हो, लेकिन फ्यूचर में भी कभी करें तो हम कर सकते हैं. अभी जैसे कि मैं हेल्थ कम्युनिकेशन में इनको रिसोर्सेज ऑफ हेल्थ का जर्नलिज्म बता रही हूँ. WHO के डेटा को आप कैसे निकाल कर, या नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे, उसके सर्वे को निकाल कर आप कैसे डेटा जर्नलिज्म से स्टोरी प्रोड्यूस कर सकते हैं. आज हमारी जो पूरी वर्कशॉप शून्य से पैदा होगी. शून्य इज अ बिग डेटा. सो थैंक यू सो मच. और आप सब लोगों का भी बहुत बहुत वेलकम टू दिस वर्कशॉप, अ वेरी इंपॉर्टेंट वर्कशॉप by the Bandwagon Club. So, sir, we'll do it. Now, I would like to invite Professor Dr. Vinita Gupta ma'am for guest felicitation. ये पौधा जीवित है और हमारा डेटा हमेशा जीवित रहता है, ये मानकर चलिए. नेवर डेड. Much before we start this workshop, without further, please come to the front rows and occupy the front seat. I request students sitting Only the front seats जो खाली है. on the last rows, please come to the front rows. Please, shift. And students, please put your mobile phones on silent mode. आप ध्यान से सुनिएगा. ये चीज़ ऐसे नहीं है कि आप बेटा आगे आओ, ये सीट्स को फिल करो. सिमरन आगे आ जाओ. आ जाओ बेटा. ये आगे यहाँ पे भी 2-3 सीट्स vacant है. Please बैठ. And there are like 3 seats here. Please come and occupy. फेक न्यूज़, फैक्ट चेकिंग की काफ़ी जॉब्स निकली, और उसमें खास बात ये थी कि आपको ज़्यादा स्किल्स रिक्वायर्ड नहीं थे तब, बिकॉज जो एरिया ही बहुत नया है तो उसमें कहाँ से एक्सपर्ट लोग आएंगे. एक्सपर्ट नहीं आएंगे तो आप जैसे लोगों को, हमारे जैसे लोगों को लेकर काम चलाना पड़ेगा, एंड द ऑन द जॉब ट्रेनिंग विल फॉलो. राइट, आपने देखा होगा फेक न्यूज़ अब काफ़ी क्या है, काफ़ी सुना जाने लगा है ये टर्म. हाँ, इट मीन्स क्या, इसमें अपर पॉइंट शायद आ चुका है. राइट, व्हाट नेक्स्ट देन? नेक्स्ट इज दिस डेटा जर्नलिज्म. इसके साथ भी वही अब होगा जो फेक न्यूज़ के टाइम में हुआ था. माने कि बहुत सारी जॉब्स निकलेंगे भी, एंड ऑलरेडी निकलनी स्टार्ट हो चुकी हैं. उसमें आपसे एक्सपेक्ट नहीं किया जाता कि आपका लर्निंग कर्व बहुत हाई हो, स्किल लेवल बहुत हाई हो. अगर आपको थोड़ा सा भी आता रहेगा तो इसमें आपकी बात बन जाएगी. आप इसको उस तरीके से ये सारी पूरी वर्कशॉप को लीजिएगा. राइट, अगर आप नो कोई बात नहीं. सो जो भी यहाँ पे आपको टूल्स, टेक्निक्स, जो भी कुछ अच्छा लगे, जस्ट नोट इट डाउन. राइट, ट्रेडिशनल मेथड बड़े काम का है, बिकॉज वो डेटा जो है जो आप हाथ से लिखते हैं दैट कैन ऑल्सो बी एनालाइज्ड. ऐसे टूल्स हैं गूगल के पास. आई एम श्योर दैट
those are very new tools and शायद आप लोगों ने उसका नाम भी नहीं सुना होगा. So once you are with GNI, तो बहुत सारी चीज़ें आपके साथ हो जाती हैं. Meaning thereby that कि आपको समझ जा रहा है. But yes, how to simplify the things, ये आप सीख सकते हैं यहाँ GNI से. आप देखिए अगर आप पैटर्न नोट करेंगे अगर बोलने का, राइट, कम्युनिकेशन का, चाहे रिटन या वर्बल या टेक्नोलॉजिकल, आप देखना हमारा पैटर्न बहुत कॉम्प्लिकेटेड रहता है कि नहीं? कितने लोग ऐसा मानना है दैट वी कम्युनिकेट इन ए वेरी हार्ड वे, या आप सिंप्लीफाई करके बोलते हो क्या? लास्ट बेंच, क्या लगता है आपको क्या लगता है? आपका कम्युनिकेशन सिंपल होता है, मॉडरेट होता है या डिफिकल्ट होता है? आपको क्या लगता है? आपसे पूछ रहा हूँ. ब्लैक शर्ट का मॉडरेट है. कितने लोग सोचते हैं उनका सिंपल है? रेज योर हैंड प्लीज. देखिए कोई भी आपने हाथ नहीं उठाया. चाहे कोई भी हो, कम्युनिकेशन हैज टू बी सिंपल. और ये डेटा जर्नलिज्म की सोल है, राइट? बिकॉज नोबडी इज इंटरेस्टेड इन योर हाई एंड नॉलेज. क्या इमीडिएटली देख के पता चल जाता है उससे भी नहीं. एक बार सेटल हो जाए आप प्लीज. हाँ, तो शुरू करते हैं. हाँ, ये आप लोग बिल्कुल अच्छी बात है. कम से कम स्टूडेंट्स आ रहे हैं. कल मैं कहीं पे था, वहाँ बैठाना मुश्किल हो गया था. Blah blah blah, so many things, so many categories are there. So these are a few snapshots जहाँ पे people have been trained and in turn they have trained others, right? That includes the people like you, media students, media people in the newsroom and all those people, right? So more than 50,000 now, because this data is also slightly old now, 5 to 6 months. So 50,000 plus people have been trained, right? And they are mostly journalists, and we are 340 trainers in all. Of course, all of them are not active, but yes, GNI has got many projects like Pathshala is one, GNI is the one, जिसके बैनर के तले आज आपकी वर्कशॉप हो रही है. ये GNI एक है. प्लस अगर आप pathshala.com पे अभी कुछ दिन पहले जाते तो they have sought the fellowships from people that we will submit some proposal and then we will fund it for 6 to 8 months or so, right? So they have got. देखिएगा सिर्फ मैं आपका 1.5 घंटा या पौने 2 घंटे लूँगा, ज़्यादा नहीं, right? आई एम श्योर आप शायद इसको ध्यान से सुनेंगे इस चीज़ को. इससे पहले लेकिन मैं आपसे एक सवाल पूछना चाहूँगा. आप आंसर देंगे पक्का? ओके. तो आप जितने भी स्टूडेंट्स हैं यहाँ पे, आज मैं मान लीजिए एक फॉर एग्जाम्पल प्लेसमेंट ड्राइव ऑर्गेनाइज करेंगे. प्लेसमेंट ड्राइव आपके पास अपनी डिग्री के अलावा क्या ऐसी खास बात है जो आपको हेल्प करे जॉब लेने में? मेरा क्वेश्चन समझ में आया? लास्ट ड्राइव, प्लेसमेंट ड्राइव चल रहा है. आपके पास आज के दिन ऐसा क्या स्किल है कि जो आपको लेने के मजबूर हो या लेना चाहें? हाँ, mastery over Microsoft applications such as Excel. Okay, very good. I'm happy that at least you have something, right? अब वो कितने उस जॉब के लिए कितना काम का है नहीं काम का वो बात दूसरी है, वो अलग डिस्कशन है. बट एटलीस्ट चलो आपके पास कुछ है. बाकियों से मुझे जवाब नहीं मिला. हाँ, Communication skills है. वेरी गुड. ग्राफिक डिजाइनर. वेरी गुड. Command over language. आवाज सुन रही है मेरी पीछे? नहीं सुन रही. आपको
सर की आवाज आ रही है बेटा? लास्ट नहीं आ रही बातें मत करिए और हो सके तो आगे आ तो तपस्या फिर भी काम नहीं आएगी। आप खड़े हो वहाँ पे और आवाज आगे आ वेरी गुड। चलो एटलीस्ट है आपके पास। मैं एज्यूम कर लेता हूँ नहीं है। सी कुछ मैं आपको मैसेज देना चाह रहा हूँ। प्लीज डोंट से दैट आई एम कमेंटिंग ऑन समथिंग। नो, मैं एज्यूम कर लेता हूँ कि नहीं है। तो फिर आप एक बात बताइए कि जिस बेस पे आप इंटरव्यू देने जा रहे हैं वो बेस तो आप सब लोगों का सेम है, डिग्री सबके पास है, तो फिर हाउ कैन यू मेक द डिफरेंस टू द कंपनी? आप लोग क्यों लें? बड़ा जेन्युइन क्वेश्चन है। अब जैसे कम्युनिकेशन स्किल्स है, अच्छा आपके पास है कम्युनिकेशन स्किल्स, बट ये स्किल क्या है कि उतना ज़्यादा डिफाइनिंग शायद उन लोगों को ना लगे। लेकिन आज का जो टेक वर्ल्ड है सर, आप मानिए या ना मानिए इस चीज़ को, राइट? उसमें से क्या एप्लीकेशंस आते हैं आपको? जैसे ग्राफिक डिजाइन में बोला, ठीक है ये फाइन, आप मेरी बात समझ रहे हैं ना? क्योंकि सारे स्किल्स भी इक्वली सेलेबल नहीं होते हैं। तो आपने देखना है कि उस टाइम पे कौन सा ट्रेंड पे चल रहा है, और उस ट्रेंड पे एक खास बात क्या होती है, जब ट्रेंड चलता है ना तो ट्रेंड में अच्छा गलत बुरा सब चीज़ों के लिए जगह हो जाती है उसमें, बिकॉज अभी मैच्योर नहीं हुआ वो फील्ड, राइट? जब मैच्योर हो जाएगा तो फिर अच्छे अच्छे लोग बाहर हो जाएंगे उसमें। आप मेरी बात समझ, अवार्ड नहीं है धीरे प्लीज 8 प्लस 10 प्लस 12 प्लस ओके वेरी गुड। अच्छा, अब एक सवाल का जवाब दीजिए कि जो ये आपने लगाया 6 to 8 hours 10 hours whatever, इसमें से आप अपने डेटा से एट द एंड ऑफ द डे कुछ बेनिफिट उठा सकते हैं क्या? या ये सिर्फ एक वन वे जर्नी है? कि व्हाट्सएप से या वेबसाइट से और भी बहुत कुछ चीज़ें चलती हैं, यूट्यूब भी है, इसने आपको कोई बेनिफिट दिया है? टेल मी। बेनिफिट तो दिया होगा, अदरवाइज कोई इतना बुद्धू नहीं होता है ना। ओके, फॉर योर इन्फॉर्मेशन, बेनिफिट इज ऑलवेज काउंटेड इन टर्म्स ऑफ नेम, फेम, मनी एंड स्किल। नेम, फेम, मनी एंड स्किल। आप में से इन्हीं 4 वेरिएबल्स पे पूरा हुआ है किसी का? ओके, क्या हुआ है? नेम, फेम, हाँ, Christian. ओके, Like I am a food blogger, so you earn on money. Instagram I have a good profile, so You that earn has money, benefited yes me. or no? Yeah. Very good. ठीक है, because ultimately everything comes down to money. Yes. नेम फेम कितना दिन आप करोगे? हाँ, कितने लोगों ने उस पर प्रोडक्टिविटी के 4 पैरामीटर मैंने बताए, नेम फेम मनी एंड स्किल्स। पहले वाले 2 कोई खास वो नहीं है, इतने अच्छे नहीं हैं, ठीक है ना? स्किल और मनी। ओके, वेरी गुड। बट आप देखिएगा सबने हाथ नहीं उठाया, हार्डली जाते हैं कि नहीं। और ऐसा नहीं कि कल का डेटा जो आया आपके पास, इंफॉर्मेशन आई, वो आप सहेज के रखते हो। नो, आप सोते हो रात को, अगले दिन वो गायब सब, फिर नया प्रोसेस शुरू होता है अगले दिन का, ऐसे नो, फिर वो खत्म हो जाता है, फिर 3rd डे 4th डे। आप परसों का कोई मुझसे मैसेज बता सकते हैं जो आपके काम आया होगा, आपको याद हो अभी? बताइए। मैसेज मीन्स डेटा, सही याद है? आपकी इन्वेस्टमेंट कितनी हुई? 7 घंटे, 6 घंटे। बस यही एक वो पॉइंट है जिसको आपको समझना है। शायद 1-2 घंटे का इंटेक लेके आप ये 3-4 पैरामीटर, 10 साल के बाद ना आपका यही इंटेक आपका नासूर बन जाएगा लाइफ में, और उसके बाद वो बढ़ना है, कम नहीं होना है। कॉल सेंटर्स के बारे में जानते हो आप लोग? कॉल सेंटर्स का ऑलमोस्ट आई थिंक 2 डिकेड बैक एकदम बहुत ऊपर से सर जाया था, मालूम है? सारे जिसको देखो वो कॉल सेंटर में हो, वो अच्छा पैसा सब कुछ, 2 साल के अंदर सारे रिटर्न। अभी देखो कॉल सेंटर का नाम भी सुनाई नहीं मिलता। यस, क्या रीजन है पता है? शिफ्ट लाइफस्टाइल, जिसमें शिफ्ट एंड लाइफस्टाइल। रात को काम होता था ना, 2 साल में बैंड बज गया सबकी लाइफ का, एंड जो बीमारियां हुई वो इरिवर्सिबल थी सारी की सारी, एज अ रिजल्ट ऑफ खाली बैठे कुछ नहीं, वो नॉर्मल से जॉब। आप समझ रहे हैं मैं क्या कह रहा हूँ? इजी है, एंड कुछ टूल्स आपने ऑलरेडी सुने होंगे, बट
कभी यूज़ नहीं किया होगा। तो एक बड़ा ही मॉडरेट हम लर्निंग रखेंगे। और ये आपकी पहली स्लाइड, इसको देख के मुझे आप एक बार बताइए कि इसमें आपको क्या दिख रहा है। म्यूरल्स हैं, हाँ, आप कभी भी एंशिएंट प्लेसेस को विजिट करेंगे ना, फोर्ट्स पे आपको मिल जाएंगे म्यूरल्स, बिकॉज पहले कम्युनिकेशन भीमबेटका मध्य प्रदेश में इस तरह। हाँ, ट्राइबल एरियाज में अब पुराना कम्युनिकेशन है ना, वो म्यूरल्स के माध्यम से होता था। यस और नो? व्हाट आई मीन टू से इज दैट एट द एंड ऑफ द डे एवरीथिंग कम्स डाउन टू स्टोरी टेलिंग। यस और नो? ये स्टोरी टेलिंग है ना, कब से है? बहुत पहले से। आप देख लो, आपका एक एक एंडेवर, राइट फ्रॉम एक्सप्लेनिंग टू योर पेरेंट्स कि आज कहाँ थे, इतना लेट क्यों हो गए, जो आप झूठ बोलते हो, एक्सक्यूज देते हो जो घर पे जाके, दैट इज़ एन वेरी गुड एक्ट ऑफ स्टोरी टेलिंग। यस और नो? आके ना, क्लास में आप आंसर देते हो, स्टोरी टेलिंग होता है। एग्जाम में आंसर राइट करते हो, स्टोरी टेलिंग है। एवरीथिंग इज ए स्टोरी टेलिंग। यस और नो? स्टोरी टेलिंग के लिए क्या चाहिए? डेटा। पेरेंट्स पूछते कहाँ थे, आप चुप खड़े रहे ऐसे, क्योंकि डेटा नहीं है आपके पास सपोर्ट करने के लिए। स्टोरी किस में बनाए? आ रहा है समझ? ठीक है ना? सो डेटा इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ये मुझे एक्सप्लेन करने की ज़रूरत नहीं है कि आज के दिन डेटा कितना आप अपलोड करते हैं। हमारे यंगस्टर्स का मेन काम आज डेटा अपलोड करना है, बाकी तो सेकेंडरी लाइफ है। राइट? आपको पता है जितनी देर में मैंने बोला, इतनी देर में 20,000 ट्वीट्स पूरे वर्ल्ड में हो गए। ठीक है ना? डेटा इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। इस्तेमाल होगा, पक्का होगा। आप इस्तेमाल करें या कोई और इस्तेमाल करते हैं, बात हो है। ठीक है? आप देखिए, इसको अगर इस्तेमाल करना सीख जाओगे ना आप, तो आपके कई मेंटल फैकल्टीज अपने आप ही ओपन हो जाएंगी। आप एक बार जरा इस विजुअल को देखो और बताओ मुझे कि इसमें आपको क्या दिख रहा है। पीछे वालों को दिख रहा है क्या? हाँ, पढ़ के बताना, पढ़ के बताना क्या है पहला। ओके, डेटा, इंफॉर्मेशन, नॉलेज, इंसाइट एंड विजडम। ये बंद कर सकते हैं एक ट्यूबलाइट फ्रंट की कर दीजिएगा, सिर्फ इतने वाली, फ्रंट वाली बस। हाँ, ये वाली। हाँ, अब ठीक है। ओके, इसको अगर आप देखिए, सिंप्लीफिकेशन की हद देखिए, मतलब हाँ, ये जो आपको प्रेजेंटेशन दिख रही है ना, ये हम लोगों ने बनाए थे। वी वाज 10 people from around the world 1 year back. Our brief was to make things simpler, right? इसको देख के आपको 2 मिनट में समझ में आ जाएगा। Otherwise you would have written a paragraph, क्या 1 पेज का 2 पेज का। समझ में आ रहा है नहीं? सेकंड में क्या है? इंफॉर्मेशन। इंफॉर्मेशन कब होती है? जब उस डेटा में पॉइंट्स आप आइडेंटिफाई करते हैं, राइट, कि ये काम के पॉइंट है। इट मीन्स आपने इंफॉर्मेशन पे आ गए हो। देन नॉलेज। नॉलेज मीन्स आपने उसके बीच के कनेक्शंस को पहचाना। फिर इंसाइट में आपने 2 पॉइंट्स को क्या किया? आइडेंटिफाई किया कि हाँ ये करेंगे, राइट, बिकॉज देयर आर सो मेनी कोर्सेज। फॉर एग्जांपल ऑन कोर्सेरा आपने देखा हम ये कोर्स करेंगे, इट मीन्स आपने इंसाइट आपने देखी, समझे? वो आता है विजडम पे। अब इसको ध्यान से देख के बताइए, इसमें से आप विजडम साइड पे हैं या डेटा साइड या बीच में है कभी? बताइए। नॉलेज साइड पे। वेरी गुड। पीछे वाले लास्ट बेंच डेटा साइड पे हो, विजडम साइड पे? नॉलेज साइड पे। जितना आपका इंटेक ज़्यादा होगा ना, 8 घंटे, 4 घंटे, 10 घंटे, इट मीन्स डेटा साइड पे ज़्यादा, क्योंकि ह्यूमंस के पास इतनी पावर नहीं है कि ह्यूज 12 घंटे के कंटेंट में वो ये सब कुछ करके विजडम तक पहुंच जाए। नॉर्मली होता नहीं ऐसे, राइट? स्पीड हमारी क्या है? ह्यूमंस की है 40 वाली। वो डेटा प्रोसेस ही नहीं होता, आप लेके बैठे रहो उसको 10 घंटे, 12 घंटे, क्या 14 घंटे लगा लो चाहे, या 24 आवर्स भी एक टाइम ऐसा आएगा आप डाटा के बीच में ही रहोगे। आप मेरी बात समझ रहे हो नहीं? क्योंकि आपके एंड पे प्रोसेस होना है। वो हमारी प्रोसेसिंग स्पीड कितनी है? 40 बिट्स ओनली। इसलिए तो वेस्ट जाता है ना, इसलिए आपको शाम को कुछ भी समझ में नहीं आता, अगले दिन से नया शुरू होता है मामला। थोड़ा सा सीरियसली ले लीजिए इन चीज़ों को, राइट? ओके, अब एक ये
डेटा सेट्स है, इसमें जो वुमेन के अगेंस्ट क्राइम है ना 2018 में वो दिखाया गया है। तो आपकी सहूलियत के लिए मैंने इसमें कुछ पॉइंटर्स लगा दिए हैं। तो इसमें पता चल रहा है कि उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश ये सबसे टॉप में है 59,000, वेस्ट बंगाल 30, 35, असम, ये सारे के सारे टॉपर मानते हो आप इनको? यस और नो? क्राइम अगेंस्ट वुमेन। अगर आपके पास एक टेबल हाथ में लग गई, आपने क्या किया, एक न्यूज़ आइटम बना दिया कि ये स्टेट्स हैं, भाई यहाँ तो बड़ा खराब रिकॉर्ड है वुमेन के अगेंस्ट में क्राइम का। यस, मैं आपको एक टेबल और दिखाता हूँ। ये टेबल क्या है? अब इस टेबल में मामला सारा उल्टा हो गया। क्या है इसमें? उत्तर प्रदेश तो बेचारा 55.7% पे आ गया। इससे टॉपर ऊपर कौन है? हरियाणा वाले हैं 107, मध्य प्रदेश 73, महाराष्ट्र 60। जो आपके पीछे टॉपर थे वो नीचे आ गए। व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन द टू? डेटा सेम है। यहाँ पे डेटा जो आप देख रहे हो ना, दिस इज आउट ऑफ द विमेन पॉपुलेशन। वहाँ पे कॉमन था, समझ में आ रहा है? तो डेटा पहले वाले पे आपने क्या किया, सब उसको समझ के और कुछ बना दिया, कुछ इंप्रेशन बना दिया लोगों का। अखबार में आपने लिख दिया, लोग मान लेंगे। लोग तो अखबार में आता तो मान लेते हैं उसे, लेकिन ये दूसरी टेबल पता चली तो आपका व्यू चेंज हो गया कि नहीं। इसीलिए थोड़ा सा टेक कम करके एक दो स्टोरीज अब देखते हैं, इसके बारे में पूछ पाएंगे। तो ये डेटा जर्नलिज्म कुछ बड़ी टॉप स्टोरीज हैं जो कि एक ऐसी सच्चाई आपके सामने लेके आती है जो कि शायद पहले पता नहीं, राइट? एंड इट चेंजेस आवर बिलीफ। फॉर एग्जांपल 1950 हमारा बिलीफ क्या है कि हाँ बॉलीवुड में तो काफ़ी कॉमेडी सिंगर्स तो पहले तो इतनी नहीं थी। आशा भोसले थी, लता मंगेशकर, वही थी बस। अब तो बड़ा हो गया, अब तो नेहा कक्कड़, ब्ला इतनी सिंगर्स हैं। बट ये डेटा जर्नलिज्म क्या कह रहे हैं कि सोलो सिंगर्स, टॉप ग्रॉसर्स कमिंग नाउ। यस नो? इसको बड़ा या कम हुआ है? एक नजरिए से कम हुआ है। यस, कहानी आपने देखी होगी वाले उसमें फीमेल सेंट्रिक पिक्चर है, उसमें भी फीमेल सोलो बात करोगे ना डेटाबेस का, क्योंकि उनको ऐसे लोग तो चाहिए ना, शुरू में लाने वाले लोग तो पहुंच जाएंगे वहाँ जाके कुछ आपको एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन निकालते हैं, राइट? एंड दैट शुड बी डेटा सपोर्ट। अच्छा, इसको करने से पहले एक काम बताता हूँ, पहले से बहुत ज़्यादा है कि नहीं? कितने लोगों को लगता है, कितने लोग ऐसा मानते हैं? रेज योर हैंड्स कि वी आर लिविंग इन द मोस्ट इनसिक्योर टाइम। बाकी लोग सब क्या? ठीक है, सब लोग मानते हैं इस चीज़ को? ओके, आपको जान के हैरानी होगी, वी आर लिविंग इन द मोस्ट पीसफुल टाइम ऑफ द ह्यूमन सिविलाइजेशन। इट वाज सो इनसिक्योर कि एक बार फ्लू अगर फैला तो सारा गांव साफ हो जाता है शाम से पहले। ये कहानी नहीं सुना रहा हूँ मैं, ये सच है, ठीक है ना? आज ऐसा होता है क्या? नहीं होता, ठीक है ना? हाँ, आपने देखा होगा कि कई स्टेट्स में ट्रेडिशन होता है कि दे मैरी ऑफ द चिल्ड्रन एट ए वेरी अर्ली एज, है ना? अब आपके अकॉर्डिंग सोशल बुराई है वो, है ना? राजस्थान में जैसे आज भी होता है, ठीक है ना? बुराई नहीं है वो, सर्वाइवल रीजन है, सर्वाइवल इंस्टिंक्ट है। क्यों? पहले वॉर्स बहुत चलते थे तो उसमें एवरीबडी वाज सपोर्ट टू पार्टिसिपेट, है ना? अब पार्टिसिपेट किया तो पता नहीं वापस आया ना, इसलिए जल्दी शादी कर दो ताकि फैमिली कंटिन्यू हो। यस और नो? ठीक है, तो पहले ये हुआ करता लाइफ की सिक्योरिटी या एक्सेस ऑफ एवरीथिंग इंक्लूडिंग मनी, व्हाट यू नीड, उससे सारी चीज़ें ज़्यादा हैं आपके पास, है कि नहीं? बताइए, कोई एक चीज़ बोल दीजिए जो आपके पास कम हो, सारी चीज़ें एक्सेस में हैं। पहले क्या था? सारी चीज़ें डेफिसिट में रहती थी, आज से कई साल पहले, जो आप पुरानी सिविलाइजेशन ह्यूमन हिस्ट्री की बात करते हैं। तो ये बिलीफ जो चेंज होता है ना, ये कौन चेंज करता है? डेटा। जब आप पूरा डेटा शुरू से एनालाइज करते हो, राइट?
मोर्टेलिटी रेट और लाइफ एक्सपेक्टेंसी रेट वगैरह। एनीवे, तो देखो इतना ज़्यादा अच्छा मतलब वो है। और सबसे बड़ी बात जो मुझे पसंद है इसके बारे में कि डेटा ऑनलाइन रहता है, आपको सीट से उठना भी नहीं पड़ता है। वरना ट्रेडिशनल जर्नलिज्म में तो भागो दौड़ो, ये करो वो करो, एंड देन ट्रैफिक हैजार्ड्स, पोल्यूशन, ऑल दोज थिंग्स, राइट। अब यहाँ एक जगह बैठना है बस। सबसे बड़ा बेनिफिट इसका ये है, राइट। मिस रीडिंग परसेंटेजेस है ना, स्कॉटलैंड फ्री होना चाहिए नहीं होना चाहिए, CNN वालों ने सर्वे किया, 58% ने कहा यस, 52 ने कहा नहीं। इतना कोई सोचता है क्या? टीवी देखते हो इतना सोचता है कोई? 100 से ऊपर चला गया। वो तो क्या देखते हैं? यस वाला क्वेश्चन देखते हैं। कितना? 58%। अब आप थोड़ा सा ध्यान देके सोचो, ये 58 की वजह क्या होना चाहिए था? 48। अब सच बदल गया, अब स्कॉटलैंड फ्री नहीं होना चाहिए, पहले फ्री होना चाहिए। ये CNN है, राइट। तो जब भी आपके साथ डेटा कैसे एनालाइज कर सकते हैं एक कोई ऑर्गेनाइजेशन? ये क्या है, रेफरेंडम किया था। हमारा इस प्रेजेंटेशन का लास्ट है कि जब आप उसको विजुअलाइज कर लेंगे, कि फाइनली विजुअलाइज कर लेंगे कि ओके, आप देखते हैं ना अखबारों में आता है या इंडिया टुडे की वेबसाइट पे आता है कि पोल्यूशन का लेवल दिल्ली में पिछले साल में इतना, तो आपको तुरंत समझ में आ जाता है, एकदम क्लिक कर जाता है। वो उसके पीछे डेटा होता है बहुत सारा। कहाँ से आता है वो डेटा? तो आई एम गोइंग टू एक्सप्लेन इन फ्यू डेटा सेट सोर्सेज। तो पहले है गूगल डेटा सेट सर्च। आप जब भी जाएंगे ना इस पर इसको नोट कर लीजिए बस, और जाके आप इसको एक बार देखिएगा। वेबसाइट बहुत सिंपल्स हैं आपके, कोई उसमें आपको सिखाने की जरूरत नहीं है। मान लीजिए आपने एंटर किया कोविड, गूगल डेटा सेट में जाके कोविड आपने सर्च किया, राइट। तो कोविड से रिलेटेड वो 100 डेटा सेट्स दिखाएगा कि जैसे मोर्टेलिटी, कोविड कंपेंसेशन, अलग अलग एस्पेक्ट जो है ना कोविड से रिलेटेड, हॉस्पिटलाइजेशन, राइट, सो मेनी थिंग्स। तो उसमें आप अपना डेटा चूज कर लो कि हाँ ये वाला डेटा, यस आपने चूज किया। उसके ऊपर भी अंडर पे 50 के आसपास डेटा सेट मिलेंगे। फिल्टर लगा लीजिए, फिल्टर लगाना आता है ना, सिंपल है। फ्री डेटा सेट, फ्री होना चाहिए, 50 में से वो 40 पे आ जाएगा। फिर उसमें से टाइम पीरियड अपडेटेड में आओगे तो फिर उस पर कम पे आ जाएगा। फिर फॉर्मेट आप बोलोगे एक्सेल में फिर कम आगे वो 10 डेटा सेट दिखा देगा, ये फ्री है भाई, डाउनलोड कर लो इसको फ्री। आप समझ में पा रहे हैं या नहीं पा रहे? हाँ, मैं अक्सर एक बात बोलता हूँ इसमें कि जैसे जैसे टूल्स आप देखते जाते हैं ना, तो कई बार तो मेरी एक बात ध्यान रखना, थोड़ा ध्यान से सुनना इस बात। ये टूल्स का, वर्कशॉप का एक बेनिफिट ऐसा है जो आपसे कोई छीन नहीं सकता है, ठीक है। जितने भी टूल्स हैं कितना आप यूज़ करोगे मुझे नहीं पता, सारे टूल्स शायद काम भी ना आए, लेकिन एक ऐसा बेनिफिट है जो कोई नहीं छीन सकता। तो क्या आप ये टूल सीख के और किसी को सिखा सकते हो? मेरी जगह यहाँ पे आप लेक्चर देके बाकी लोगों को थोड़ा नॉलेजेबल बना सकते हो। और इसमें कुछ भी नहीं है ऐसा कि आपको एक्सपर्ट होना चाहिए, नहीं, ठीक है ना, समझ में आ रहा है? नहीं, तो ये बेनिफिट तो हमें लेना ही है ना हर एक को, राइट। तो थोड़ा सा आप प्लीज़ इसको मतलब सीरियसली लीजिएगा, बिकॉज आई एम पर्सनली वेरी पैशनेट अबाउट इट, बिकॉज इन चीज़ों ने मुझे बहुत बेनिफिट दिया है। एंड इट्स नॉट दैट आई एम वेरी एक्सपर्ट ऑन दीज थिंग्स, नो, ऐसा नहीं है। और अगर आप बाद में गूगल ट्रेनर के लिए अप्लाई करोगे, यू आर सपोज टू नो ए बिट ऑफ दीज थिंग्स। समझ में आ रहा है नहीं? एंड दीज टूल्स आर सब्जेक्ट न्यूट्रल, माने आपके घर में बिजनेसमैन भी हैं, डॉक्टर हैं, कोई भी प्रोफेशन है, कोई भी स्टेज है, सब में लागू होंगे, सब्जेक्ट न्यूट्रल है। प्रेजेंटेशन को बनाने के यही पीछे वो रहता है कि ब्रीफ ये था कि इसको सिंपल रखना है और सबसे ज़्यादा 360 डिग्री इसके एप्लीकेशन है। आपके घर में आपके पास नोट्स पड़े ना, हैंड रिटन, कई साल पुराने होता है ना, उसमें से डेटा एनालाइज कर सकते हो? नहीं कर सकते। आई हैव वन टूल व्हिच कैन एनालाइज फ्री में।
इतना आपने जो क्लास में बैठ के विजडम उतारी थी कभी उस पर, अब वो बड़े नोट्स ऐसे, राइट? उसमें से अगर आपको खोजना है कुछ, देयर इज अ टूल, आप जर्नलिस्ट बनोगे आगे जाके, राइट? तो पीपल विल गिव यू इन्फॉर्मेशन, राइट? वो किसी भी फॉर्मेट में हो सकती है, हैंड रिटन हो सकती है, कंप्यूटर जनरेटेड इनवॉइस हो सकती है, या पिक्चर क्लिक करके हो सकती है किसी चीज़ की। तो वहाँ पे आपके पास ये स्किल होना चाहिए कि हर जगह से इन्फॉर्मेशन को एनालाइज कर लें आप। आगे टूल आएगा बताऊँगा। तो मैंडेट अब इसका क्या है, एकदम ज़बरदस्त वाला है, राइट? सिंपल टूल्स हैं, सब लोग काम करते हैं। एनीवे, गूगल डेटा सर्च हो गया आपका, फ्री है एकदम। और इसको बोलते हैं एक चीज़ को डेटा बायोग्राफी। क्या बोलते हैं, बोल के बताओ? डेटा बायोग्राफी। बायोग्राफी मीन्स जैसे किसी की बायोग्राफी पढ़ते हो कि उन्होंने क्या क्या किया, कहाँ कहाँ गए, कैसे कैसे काम किया उन्होंने। डेटा बायोग्राफी इज द बायोग्राफी ऑफ द डेटा, माने किसने इकट्ठा किया, कब इकट्ठा किया इस डेटा को, क्या टाइम पीरियड था, किस पर्पस के लिए किया, किसने फंड किया था क्या इस डेटा सेट को इकट्ठा करने में, राइट? आप समझ रहे हैं या नहीं? द मोमेंट यू आस्क दीज क्वेश्चंस टू द डेटा, आप देखना आपके डेटा का पर्सपेक्टिव बदल जाएगा। आप देखिएगा जितनी भी अल्कोहलिक कौन था वो, किस टाइम पीरियड का डेटा है, मोटिवेशन क्या है तुम्हारे शेयर करने का, क्यों शेयर कर रहे हो भाई मेरे साथ, तुम्हारा क्या बेनिफिट है इसमें, ठीक है? कब कब का डेटा है, कहाँ पे इकट्ठा किया है। आप बात समझ रहे नहीं? ये चीज़ें आगे काम आने वाली हैं आपके यहाँ। गूगल ट्रेंड्स कितने लोग इस्तेमाल करते हैं, कभी किया है? क्या सर? गूगल ट्रेंड्स आया ना? कोई नहीं करता? ओके, गूगल ट्रेंड्स को यूज़ करके आपने कोई प्रोडक्टिव काम किया है या सिर्फ मौज मस्ती के लिए किया? ओके, चलिए अब देखते हैं। रोज सोशल मीडिया पे रहते तो फिर आई कैन अंडरस्टैंड, प्लीज आप वो मत करो, ऑलरेडी बेचारे स्ट्रेस हैं, डोंट वरी। अच्छा कोई बात नहीं, इट्स ओके। देखो ये टूल ऐसा है जिसमें मतलब शायद आई थिंक 25 साल से जो मैंने रिसर्च कर रहा हूँ उसमें बहुत कम टूल्स ऐसे हैं जिसमें कुछ भी नहीं करना पड़ता आपको, सारा काम आपके लिए और कुछ करते हैं, और लोग करते हैं। जैसे ये है आपका गूगल ट्रेंड्स। ट्रेंड्स इज नॉट द ट्रेंड जो आपने देखा ट्रेंड नहीं, ये क्या करता है आपके 5 या 6 कीवर्ड्स को कंपेयर करता है। कीवर्ड्स कैन बी एनीबॉडी, सेलिब्रिटीज, स्पोर्ट्स पर्सन, राइट? आपके वर्ड्स जो आप लोग इस्तेमाल करते हो, OTT सीरीज देखते हो ना, हाँ वो वाले शब्द, बढ़िया वाले गालियाँ, मतलब देसी में कि कौन सी गाली ज़्यादा लोग सर्च कर रहे हैं। आप मेरी बात समझ रहे हैं नहीं? अब मैं इसको एक छोटे से तरीके से इस्तेमाल करके, कैन आई टेक ए कॉल? Just one second, please. Just 1 second. It's very important. Excuse me. SEN. ठीक है? आगरा सैन सिंगल जी है बोला। आपके कंपीटिंग ब्रांड्स कौन कौन से हैं? टेक्निया, अच्छा लिप्स भी देख लेते हैं, कोई बात नहीं। लिप्स रेस्टोरेंट वाले विवेकानंदा
ओके, अब इसमें से आप 5-7 और ले सकते हो, बट अभी 4 ही लेके मैं बता रहा हूँ। क्या कर रहे हैं हम लोग? हम ये देख रहे हैं कि वर्ल्ड वाइड जो गूगल पे सर्च की जा रही है उसमें हाउ मेनी पीपल आर सर्चिंग अबाउट दीज इंस्टीट्यूशन, राइट, फ्रॉम अराउंड द वर्ल्ड, राइट। तो ये आपको एक ऐसे चार्ट दे देता है। इसमें सबसे ज़्यादा क्या है? महाराजा अग्रसेन, तालियां बजा सकते हो। सेकंड में क्या है? विवेकानंदा, फिर टेक्निया, फिर जेम्स, राइट। अब ये अब थोड़ा सा आप देखो, अच्छा देखो पास्ट डे का है ये, ओनली पास्ट डे का। मैं पास्ट 5 इयर्स का अगर करूँगा तो शायद पिक्चर चेंज हो जाए, राइट। ओके, आप देखिए, सुनिए, नीचे आ जाइए। यहाँ पे महाराजा अग्रसेन मीट के बारे में सर्च किया गया था तंजानिया से, पाकिस्तान से, इंटरनेशनल 33 है, ये सारा दिखा देगा आपको। इसमें भी इसमें क्या क्या क्वेरीज की गई, मेट से रिलेटेड क्या क्वेरी, मेट जी मेन, कट ऑफ, NSCIT, मेट NIR रैंकिंग, लाइक दिस, ठीक है। और इन बाकी लोगों से रिलेटेड क्वेरीज क्या है? टायर्स डेली, टेक्निकल इंस्टीट्यूट, ये फलाना वगैरह। आप बात समझ रहे हैं नहीं? वर्ल्ड वाइड। अब इसको अभी डाटा को फ्री डाउनलोड कर लो, ये डाटा फ्री डाउनलोड हो गया आपका यहाँ पे। इसको देख लो यहाँ की, अगर आगे और सर्च करना चाहते हो तो डेटा फ्री है आपका, ये समझ में आ रहा है? अब इतना इसको करने में कितना टाइम लगा? मुश्किल से 1 मिनट। इस पे पूरा आप एक रिपोर्ट बना सकते हो या नहीं? अभी मैनेजमेंट को दिया खुश हो जाएंगे जाके। इस गूगल ट्रेंड्स पे हमारा ये रिकॉर्ड रहा है, हो गया डेटा जर्नलिज्म। मोड क्या होता है इससे? फिल्टर्स आप इस्तेमाल कर लीजिए। यहाँ पे पास्ट 5 इयर्स का देखना है, 30 डेज का देखना है, या शुरू से देखना है। अब कैटेगरीज में, अच्छा ये वर्ल्ड वाइड है, आप इंडिया ले लो यहाँ से, ये नहीं, हम इंडिया से देखेंगे। इंडिया में आप करेंगे तो अगेन क्या पता डिफरेंट हो सकता है एनालिसिस, वर्ल्ड वाइड और इंडिया, वो भी आपको पता होना चाहिए। सो अब आपकी मैनेजमेंट के पास, मेट वालों के पास एक क्या है? इन्फॉर्म्ड ओपिनियन है, इन्फॉर्म्ड ओपिनियन है अभी, राइट। समझ में आ रहा है नहीं? अब आप क्लेम कर सकते हो कि हाँ हमारे बारे में लोग सबसे ज़्यादा सर्च करते हैं, मतलब हमारा पॉपुलैरिटी सबसे ज़्यादा है। अब कर सकते हो, पहले अगर बोलते तो वो हवाबाजी होती। यस और नो? आपके पास अभी डेटा है, इसका स्क्रीनशॉट ले लो। अब ये जो इंस्टीट्यूट्स हैं, इंस्टीट्यूट्स कैन बी रिप्लेस्ड विद सेलिब्रिटीज, वर्ड्स, प्लेसेस, हिस्टोरिकल प्लेसेस एंड सो मेनी थिंग्स, गवर्नमेंट्स, पर्सन्स, पॉलिटिशियंस। कितने आइडियाज दे दिए? कम तो 20 आइडियाज मैंने आपको दे दिए अभी यहाँ बैठे बैठे। 20 जर्नलिज्म स्टोरी आप टाइम से पहले लिख सकते हो, जिसमें डेटा आपके लिए कोई और एनालाइज करना है, आपने कुछ नहीं कहा, आपने सिर्फ अपना ऑर्डर देना है बस। समझ आया या नहीं? वेब सीरीज का नाम डाल दो यहाँ पे, 5-7 जो भी है कॉम्पिटिंग, तब उसमें पता चल जाएगा आपको। अब डिसर्टेशन जब करनी पड़ेगी ना, ये चीज़ें आपको तब ध्यान आएंगी, देखना। रिसर्च डिसर्टेशन करोगे तो ये चीज़ें ध्यान में आएंगी। चलो इसको बंद कर देते हैं। तो आप ट्रेंड्स जाकर यूज़ करना, एक बार सारा देखो इसको नीचे तक, हर चीज़ आप इसमें डाउनलोड कर सकते हो। डाउनलोड नहीं करना तो यहीं का यहीं इसको शेयर कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल यहाँ पे शेयर कर दिया, फेसबुक पे करना है, वहाँ कर दो। अब ये स्टोरी बनी बनाई है आपकी, बात कर रहे थे ना अभी, मैडम बोल रहे थे डेटा जर्नलिज्म की, ये स्टोरी बनी बनाई है। अब मुझे बता दो उसमें किया क्या है आपने? टेल मी। तो सिर्फ एक सर्च,
सर्च तो उसने किया है, आपने नहीं किया। ध्यान से। कीवर्ड इतना तो कर लेना, ठीक है, इतना तो बनता है थोड़ा सा। मतलब सिंपली अमेजिंग। मुझे कई बार लगता है लोग करते क्यों नहीं। अच्छा अगर करते नहीं कोई बात नहीं, मैंने भी शायद ज़्यादा नहीं किया, लोग बताते क्यों नहीं, शेयर क्यों नहीं करते, लेक्चर क्यों नहीं देते इन चीज़ों में जाके, ये मुझे आकर समझ नहीं आया। ये ऐसा कोई सब्जेक्ट है जो, इसलिए जितने भी टूल्स हैं ना, इनकी जो मार्क क्षमता है ना वो अराउंड है पूरी, मतलब 360 डिग्रीज पे है। आप SPSS की बात करोगे, SPSS सिर्फ स्टैटिस्टिकल एनालिसिस में यूज होता है, बस खत्म, उसके अलावा उसका यूज़ कहीं नहीं। इसलिए मैं बताया था ये सिलेबस जो बना रखा है ना, ये बहुत खून जला के बना रखा है। क्या सिंप्लीफाइड है क्या, ठीक है, एप्लीकेबिलिटी इसकी कितनी है। ओके, तो ये हो गया। और मैं अभी थोड़ा जल्दी करता हूँ। गूगल पिन पॉइंट कितने लोगों ने कभी यूज़ किया है? अब देखिए इसका मैं एक डेमो देता हूँ आपको। आप जाके लिख देना गूगल पिन पॉइंट, जो पहले आपका सर्च आए यहाँ पे ये, इसको आप क्लिक कीजिएगा, यहाँ पे आएगा आपको एक्सप्लोर एंड एनालाइज लार्ज कलेक्शन ऑफ डॉक्यूमेंट्स। ये वो टूल है जो मैं कह रहा था अभी। आपके पास अगर कबाड़ में इंफॉर्मेशन पड़ी है, लेकिन आपको लगता है यार इसमें कुछ काम की चीज़ें हैं, लेकिन हमें पता नहीं कहाँ है, आ रहा है समझ? आपके कंप्यूटर में एक बार देखो, चेक करना यार, उसमें दुनिया भर का कबाड़ पड़ा हुआ है और आप उसको कैपेबल नहीं हो उसको क्या करने के, उसमें से इंफॉर्मेशन निकालने के। क्योंकि याद रखना, अगर आपने निकालने की कोशिश की तो 40 बिट्स पर सेकंड पे काम करता है प्रोसेसर, वो आपके काबू ही नहीं आएगा। इसीलिए वो काम किसको करने दो, ऑनलाइन टूल्स को करने दो, राइट। अब ये एक ऐसा एक टूल है, क्लाउड बेस्ड है बेसिकली। ये आपको अपना मटेरियल ऑनलाइन सेव करने की क्या देता है, एक फैसिलिटी देता है। पहले तो आप अपलोड करोगे नेचुरली, उसके बाद ये एनालाइज करेगा कितना स्पेस आप सोच सकते हो आपको देता होगा ये 100 GB। इसमें आप अपने फोल्डर्स बना लीजिए, जैसे मैंने बना रखे हैं सारे फोल्डर्स। यहाँ पे एक फोल्डर में अपलोड डॉक्यूमेंट्स कर सकते हो, कितने, 2 लाख। मतलब जितना आप हायर सोच सकते हो उतना कर सकता है आपके लिए। किस फॉर्मेट में आप अपलोड करो, कोई फॉर्मेट हो आपका, MP3, MP4, PowerPoint, PPT, PDF, Excel, जो फॉर्मेट आपने सुना है उस फॉर्मेट में डाटा अपलोड करो। आइडिया इज कि आपका टाइम ये बेकार की चीज़ों में ना लगे। फॉर एग्जाम्पल आई कम बैक टू द MCD करप्शन डेटा नाउ। किसी ने आपको दिया कि साहब ये CD है, 25-30 हज़ार फाइलें इसमें हैं, आई डॉक्यूमेंट अपने वर्ड से भी सर्च कर सकते हो। फॉर एग्जाम्पल मैं बोलता हूँ कि स्पिरिचुअल वर्ड बताना जरा, इस पूरे इवनिंग नोट्स में कितनी जगह, 14 बार। ओके, जैसे मैं करता हूँ तो ये बता देगा मुझे कि ऐसे ऐसे है। यहाँ पे थोड़ा सा बैंडविड्थ कम है, एनीवे ये नीचे मैं आपको एक बार ये दिखाना चाह रहा था कि अगर ये कहीं कागज पे भी लिखा हुआ है ना तो भी उठा के ले आएगा। ये पीछे क्या है, मैंने क्या किया था, कॉपी पे लिखा स्पिरिचुअल, क्विकली अपलोड कर दिया पिन पॉइंट। जब मैंने सर्च किया स्पिरिचुअल तो देखो, यस और नो। तो हैंड रिटन नोट्स जितने भी हैं, अगर आपको लगता है कि उसमें कोई इन्फॉर्मेशन काम की है, जस्ट स्कैन देम, अपलोड, स्कैन, अपलोड, एंड देन सर्च थ्रू द वर्ड जो मैंने बताया ऊपर जाके, वो नॉर्मल सर्च है गूगल। एक और कमाल का है इसमें क्या, YouTube के जितने भी वीडियोस हैं ना इंग्लिश में, वो आप क्या करो, MP3 में डाउनलोड करो, हो जाएंगे, अपलोड देम ऑन पिन पॉइंट। जब अपलोड करोगे पता है क्या करेगा, ये एक काम करेगा इसमें, देखना मैंने एक वीडियो गार्जियन की वेबसाइट से डाल के यहाँ पे अपलोड किया था, ये ट्रांसक्राइब कर देगा उसको।
इंग्लिश का टेक्स्ट निकालते हैं, इसको यहाँ से डाउनलोड कर लो आप ट्रांसक्रिप्ट को। अगर आपको लगता है कि ये जर्नलिस्ट वर्ड नहीं जर्नलिज्म है, इसने गलत ट्रांसक्राइब किया है, तो इसको सुन लो यहाँ पे। When I was training to be a journalist, reporting was about one thing, about words, conjuring up visual images with... समझ आ रहा है? Now journalism is about something much more about, and that's what you're using, power, data. Data journalism is the use of key information sets, key data, key reference items to inform... मतलब पैराग्राफ्स में डिवाइड कर देगा और हर एक पैराग्राफ में आप सुन सकते हो, आपको लगे कि हाँ ये जर्नलिज्म वर्ड है, यहाँ से चेंज कर लो, एडिट कर लो, चेंज कर लो। आए समझ? अभी शायद आपको, मुझे पता नहीं कितना अपील करेगा ये, टीचर्स को तो बड़ा अपील किया है मुझे, तो टीचर्स की प्रॉब्लम है ये क्या, डेटा इकट्ठा करना। डेटा इकट्ठा मतलब मेहनत। YouTube पे इतने दुनिया भर के बढ़िया बढ़िया लेक्चर्स हैं, है ना? जस्ट डाउनलोड दैम MP3, अपलोड दैम इन पिनपॉइंट। ये क्या है, यहाँ से निकाल के आपको कर देगा। सारा बजट ऑनलाइन अवेलेबल है, स्पीच अवेलेबल है, फाइनेंस मिनिस्टर, ठीक, डाउनलोड कर लो। उसमें देन सर्च फॉर द कीवर्ड्स की, फॉर एग्जांपल फार्मर, डिफेंस, डेटा, या आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस या सॉफ्टवेयर, ये कीवर्ड्स आप डिसाइड करो कि आप क्या देखना चाहते हो कि गवर्नमेंट का स्ट्रेस इन पे कितना है पिछले 5 साल में, तो पता चल जाएगा ना कि फार्मर वर्ड 5 साल पहले वाले बजट में कितनी बार आया है। इसका मतलब गवर्नमेंट का इस पे क्या है, स्ट्रेस है बजट में। जहाँ जहाँ भी यूज हुआ है वो वर्ड, जस्ट कॉपी द सेंटेंस, अलग से MS वर्ड में पेस्ट कर लो, राइट? तो आपको पता चल गया इतने कीवर्ड्स के बारे में, गवर्नमेंट का स्ट्रेस ये है। उन सेंटेंसेस को ध्यान से पढ़ लो, अपनी रिपोर्ट लिखो। इसमें कितना टाइम लगेगा आपको पता? एक प्रोजेक्ट मैंने आपको बैठे बैठे दे दिया, हो गया आपका। इसमें बजट से लेके एनालिसिस तक काम इसने करना है। आपने क्या करना है, सिर्फ कीवर्ड देने और कॉपी करना है और पेस्ट करना है बस, और एक छोटा सा रिपोर्ट लिखनी है। ओके, अब लास्ट में आता है, बस बहुत जल्दी खत्म करेंगे इसको, विजुअलाइजेशन। आपने देखा कि आजकल ग्राफ ज़्यादा आते हैं न्यूज़पेपर्स में बजाय कि टेक्स्ट के, यानी अगर वो कोई चीज़ हाँ ग्राफिक फॉर्म में आती है ना, क्योंकि ग्राफिक्स काफ़ी अट्रैक्ट करता है। मुझे ये बताइए कि इसमें से कौन सा लाइन बड़ी है? पीछे वाले, ऊपर वाली? वेरी गुड, ओह यस। आपको जान के हैरानी होगी, दोनों एक जैसी हैं। आपने गलत नहीं किया कुछ। ह्यूमंस में ना एक इल्यूजन होता है, इल्यूजन, ठीक है ना? वो इल्यूजन यही था। जैसे मैजिशियन होता है ना, वो सारे के सारे क्या है, मैजिक नहीं करता, वो ह्यूमन का इल्यूजन है, उसको क्या करता है, एक्सप्लॉइट करता है, राइट? लेकिन आप तो अपना ओपिनियन उसी पे बेस रख के बनाते हो ना। अब आपने बोला कि ऊपर वाली लाइन बड़ी है, तो इसका मतलब यही हमारा क्या है, गड़बड़ हो गया। तो आप स्टोरी पढ़ते वक्त ये चीज़ अगर करते हो तो आप देखोगे इम्पैक्ट गलत जाएगा, राइट? तो एक मूलर आई लेयर, इसको इल्यूजन बोलते हैं। एनीवे, अब मुझे ये बताओ कि इसमें कितने फाइल्स हैं? इस लिस्ट में कितनी बार 5 वर्ड यूज हुआ है, बताइए। पांच बार? ओके, वेरी गुड। 7 भी हैं, 6 भी वाले हैं, 5 वाले ज़्यादा लग रहे हैं। 6 टाइम्स। अब ऐसा क्यों हुआ? बिकॉज हाई कॉग्निटिव लोड है हमारे ऊपर भाई। आप तो 8-8 घंटे लगाते हो, 8-8 घंटे वालों के ऊपर कितना कॉग्निटिव लोड मैं समझ सकता हूँ, ठीक है? उसमें कितने सारे मैसेज होते हैं, अमित शाह के भी मैसेज होते हैं, मोदी के भी मैसेज होते हैं, और
BSF के डायरेक्टर जनरल के भी होते हैं कि कंट्री को कैसे सेव किया जाए, प्लीज़ अपना ओपिनियन और रात के 12 बजे, वो सारा होता है, मैं समझ सकता हूँ आपकी बात, ठीक है। लेकिन जब भी हाई कॉग्निटिव लोड रहता है ना, फिर आप आगे वाले को कितना भी बता लो कि कुछ समझ में नहीं आएगा। जैसे अभी आप लोगों के अंदर से गुरु होने लगी है, क्योंकि कॉग्निटिव लोड बहुत ज़्यादा है आपके ऊपर। आ रहा समझ? इसलिए फिर आप क्या करोगे, एक चीज़ आपको ध्यान होनी चाहिए कि टेक्स्ट और विजुअल्स का डिफरेंस रहता है परसेप्शन का। विजुअल 60,000 टाइम्स ज़्यादा परसीव किया जाता है बजाय कि टेक्स्ट। ये साइंस है, 60,000 टाइम्स। तो इमेज पे ज़्यादा जोर है, इसलिए आपको डेटा जर्नलिज्म पे। अब आगे देखो, ये वाला कुछ डेटा विजुअलाइजेशन में आपको दिखाता हूँ कि अच्छी वाली है जिससे तुरंत मीनिंग कन्वे हो जाता है। कई ऐसी हैं कि बाप रे, आप टक्कर मारते रहो कुछ भी पता नहीं चलता। अब इससे बड़ा क्लियर है ना, 2012 का इलेक्शन है, ठीक है ना? ओके, तो इन्होंने ये इसका स्क्रीनशॉट आप चाहो तो ले सकते हो। वैसे गूगल वाले अपने प्रेजेंटेशन शेयर करना अलाउ नहीं करते, बट स्क्रीनशॉट तो ले सकते हो आप। अगर डिस्ट्रीब्यूशन दिखाना है आपको कहीं, तो ये गोल वाले जो है पहले वाले डिस्ट्रीब्यूशन नहीं थे। फिर पार्ट टू गोल दिखाना है सेकंड। कोरिलेशन में ये वाला ग्राफ, टाइम सीरीज में हमेशा ये कैटेगरीज का कंपैरिजन या रैंकिंग, वो वाला। इसके अलावा अगर आप कोई विजुअलाइजेशन अगर ट्राई करेंगे तो फेल होने के चांसेस ज़्यादा हैं। जैसे भाई मान लीजिए फॉर एग्जांपल न्यूज़पेपर का क्राइम कवरेज है, क्राइम की अलग अलग कैटेगरीज हैं, मर्डर, मोलेस्टेशन, रेप, थेफ्ट, बर्गलरी, सो एंड सो। अब आपने देखने कितनी है भाई, तो अगर उसके सामने बार चार्ट की फॉर्म में अगर है तो तुरंत समझ में आता है कि नहीं। बार चार्ट हो सिंपल एंड वो डिसेंडिंग ऑर्डर में हो, सबसे पहले ये फिर ऐसे कम, तुरंत समझ में आ जाएगा। आप दूसरी सिचुएशन समझिए, अगर ये मान लीजिए डिसेंडिंग ऑर्डर में नहीं है, ऐसे है, तो समझ नहीं पाओगे, आपको दिमाग लगाना पड़ेगा ज़्यादा कौन सा है। या बार चार्ट ना होगी, कोई और चार्ट है, बबल्स हैं, आप पता लगा के दिखा देना, हो ही नहीं सकता। इसीलिए डेटा जर्नलिज्म में जब आप करते हो ये चीज़ें आपको ऑलरेडी पता होनी चाहिए, राइट? ठीक है, ओके। जीडीपी का डेटा अगर आपको कंपेयर करना है तो बताओ कौन सा लाइन चार्ट ज़्यादा अच्छा है, सेकंड वाला अच्छा है, बताना एक बार। कंपैरिजन किस में अच्छा हो रहा है? बार चार्ट्स में। लाइन में तो पता भी नहीं चल रहा कुछ, जबकि आप इसको ऐसे भी रिप्रेजेंट कर सकते हो, लाइन में भी कर सकते हो, लेकिन वो डिजास्टर है, कोई पढ़ेगा नहीं उसको। हाँ जी, ये देखो कितना क्लियर है इसमें, देखो चाहे वो डिसेंडिंग ऑर्डर में या असेंडिंग ऑर्डर में, व्हाटएवर, लेकिन आप यू कैन मेक आउट, इजंट इट? चलिए ये कंपैरिजन अगर करना है, मान लीजिए दो कैटेगरी का कंपैरिजन, तो बार चार्ट्स इन डिफरेंट कलर्स सो दैट इमीडिएटली लोग पता कर लें हाँ कंट्रास्टिंग, कुछ कंट्रास्ट हो रहा है बात यहाँ पे, है ना? पाई चार्ट यूज करते हैं आप लोग, कितना इजी है, देखो पाई चार्ट। ओके, अब ये देखो इसमें से कौन सा समझ में आ रहा है? आप लोग लेकिन पहले वाला यूज करते हो ना, ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड करने के चक्कर में, ज़्यादा बताने के उसमें। ये वाला देखो बैड पाई चार्ट है, दिखने में सही लग रहा है, लेकिन इसमें ये पता नहीं चल रहा कि कौन सा ज़्यादा है कम, सारे तो इक्वल जैसे लग रहे हैं। आपको तो दिमाग लगाना पड़ेगा ना, फिर शुरू से लेके सारे नंबर चेक करने पड़ेंगे। तो नहीं पता लगे। हाँ, ऐसे भी पता लगे, नंबर्स भी काफी क्लोज है ना, किसी के पास टाइम नहीं है, पता है ना? जैसे डेटा से लेके इंफॉर्मेशन बताया ना, विजडम तक एकदम सब कुछ क्लियर था विजुअलाइजेशन के साथ में, ऐसे होना चाहिए था। ये वाला ये बना रखे लोगों ने, इसमें आ रहा है कुछ समझ? नहीं सर, वो पहले ये टूल्स हैं, ये लिख लो आप या स्क्रीनशॉट ले लो।
ये लास्ट है अपना फ्लरिश पे जाओगे ना, कितने लोगों ने कभी यूज किया है फ्लरिश? डेटा रेफर, टैब्ल्यू, इन्फोग्राम, ज्यादातर दो यूज होते हैं, फ्लरिश एंड डेटा रेफर। फ्री है दोनों। आप अगर ना जाओगे इसमें यहाँ flourish.studio, बस सिर्फ एक इसका बता के मैं अभी फिनिश करता हूँ। इसमें खास बात पता है क्या? एक तो फ्री है, सबसे बड़ी खास बात ये है। ओके, दूसरी बात कि जब आप इसको खोलेंगे तो आपको ये रेडीमेड क्या करेगा? विजुअलाइजेशन देगा। विजुअलाइजेशन है, थोड़ा सा लोड होने में टाइम लग रहा है। वाई साइन अप नेटवर्क होल्डिंग स्किल, लॉगिन साइन इन पे वो दिखा रहा है। अदरवाइज न्यू विजुअलाइजेशन, ये इतने सारे आपको क्या करेगा? सैंपल दिखा देगा, राइट? दुनिया भर के और ये लोड नहीं हो पा रहा बिकॉज़ इमेज में कन्वर्ट काम इसको कर रहे हैं। देखो नेट बड़ा स्लो है। देखो ट्रेडिशनली जो आप एक्सेल में बनाते हो ना चार्ट्स, आप सिर्फ ये सेंटेंस सुन लेना, आपको इसका बहुत कुछ क्लियर हो जाएगा। ट्रेडिशनली when you make charts in Apple you have to enter the data first, yes or no? Yes. इसमें उल्टा है। इसमें क्या करते हैं? पहले आपको विजुअलाइजेशन दे देते हैं और उसके पीछे फिर आप क्या करो, जाके आप अपना डेटा ऐड करो। फॉर एग्जाम्पल आप बोलोगे कि बार चार्ट कैटेगरीज है भाई, बताया था ना शुरू में, बताया था ना, अगर कैटेगरीज है बार चार्ट इधर आपने सिलेक्ट कर लिया कि मुझे ये सही चाहिए, ओके फाइन, तो आपका क्या करेगा? इसको खोलेगा एक बार, ये बताएगा कि साहब ये ऐसे दिखेगा। ये ऐसे दिखेगा, राइट? आपने ताड़ दिया, कहा यस मेरा डेटा बिल्कुल ऐसे सही दिखेगा। आप क्या करो, यहाँ डेटा में चले जाओ, ठीक है? अब आप कंट्री पॉपुलेशन, आप क्या करोगे? यहाँ पे जाके लिखोगे क्या? मर्डर 23, ठीक है? रेप 4, ठीक है? ये क्राइम का डेटा है, क्राइम का डेटा है, कॉपी पेस्ट भी कर सकते, ठीक है? बर्गलरी 45, साइबर क्राइम मान लीजिए 67, राइट? ये वाला मैं डिलीट कर देता हूँ, समझ में आ रहा है? ये मैंने डिलीट कर दिया ये डेटा। अब मैं प्रीव्यू देखता हूँ, क्या गया? यस, पीछे वाले वासियाँ मतलब भाई बस 2 मिनट में खत्म कर रहे हैं। आप मेरी बात समझे जो मैंने बोला? ये आपको पहले विजुअलाइजेशन दिखाएगा। अगर जमती है आपको कि हाँ यस मेरा डेटा अगर ऐसा दिखे तो सही रहेगा, फाइन, आपने चूज कर लिया। इसमें डेटा में चले जाओ, या तो कॉपी पेस्ट कर लो या आप मैनुअली जैसे मैंने एंटर किया वैसे कर सकते हो। फिर देख लो कि दिखेगा कैसे, ऐसे दिखेगा, बिल्कुल सही है। डेटा जर्नलिज्म की किसी भी स्टोरी में यहाँ पे जब आप इस पर माउस ऊपर लेके आओगे ना, होवर करोगे तभी दिखाएगा इसकी, अदरवाइज वो साइलेंट रहेगा। समझ में आ रहा है नहीं? अब इसमें दिक्कत क्या है? डेटा आपके पास है सारा, कहाँ से लिया? गूगल से लिया था, ट्रेंड से, कॉपी एंड पेस्ट, विजुअलाइजेशन ये दे रहा है, जगह भी दे रहा है, ऐसे ऐसे डाल दो करके वो देख लो, एंड देन एक्सपोर्ट एंड पब्लिश, लिंक दे देगा, ये जाके वो हो जाएगा। अगर आपको कुछ लिखना है इसके ऊपर, अगर आप लिखना भी चाहते हो 2-3 लाइनें, यहाँ पे ऐड कर लो, ऐड योर कैप्शन हेयर, ये नीचे आपका चार्ट दिखा रहा है, ऊपर कैप्शन हो जाएगा, जैसे क्राइम कवरेज बाय द इंग्लिश न्यूज़पेपर, राइट? इंग्लिश, यहाँ लिख लो आप कुछ भी, जो भी आपकी स्टोरी है, ठीक है जी? नीचे चार्ट है, इसको एक्सपोर्ट एंड पब्लिश लिंक दे देगा,
शेयर करने का, पब्लिक लिंक हो गया, खत्म बात। आपको लगे कुछ गड़बड़ हो गई है, गड़बड़ हो गया मामला, तो ये आपके अकाउंट में खुला रहेगा, वापस आगे ठीक कर लो, कोई बात नहीं, टेंटेबल भी है। ऐसा नहीं कि एक बार गया तो गया, नहीं, ऐसा नहीं। अब जैसे मैंने बना दिया, अब जैसे मैं फिर अपना अकाउंट खोलूँगा ना, सबसे पहले बताएगा ये प्रोजेक्ट्स आपने बना रखे हैं, ऑटोमेटिकली सेव होता है, उसमें जाके चेंज कर लो एंड फाइनली उसमें चेंज हो जाएगा। सो वी स्टॉप हियर नाउ एंड मुझे आपसे एक छोटा सा फेवर चाहिए, क्या फीडबैक गूगल वाले लेते हैं, और फीडबैक मीन्स व्हाट, अपना इसको स्कैन करो, फीडबैक आएगा, उसमें फीडबैक भरो। अगर कभी कभी आगे ट्रेनिंग हुई और ट्रेनर बनना चाहते हो तो रास्ता यही है, क्योंकि डेटा भी तो जाना चाहिए ना गूगल के पास। देन दे विल मेल यू कि भाई हम ट्रेनिंग कर रहे हैं, आर यू इंटरेस्टेड, इसलिए करना है इसको। भरो तो पहले भरो तो गूगल के पास अपना डेटा तो जाने दो, आपके डिटेल्स